Hello students, my name is Varuni from Social Science Department Resonance PCCP, and today we are going to discuss a very important chapter from history, that is the age of industrialization. Okay. Before starting with the chapter's description, this is unit 2 of history and this is an important chapter that we are going to discuss. Okay. Briefing you with what we are going to cover in this chapter. Just take a quick review. As the name suggests, the age of industrialization, industry word is the root word over here, which indicates that we are going to discuss something related to development or the changes which the industrial sector was facing during particular time frame in history. Okay. Now we have a comparison over here. Okay, हमको यहाँ पर एक कंपैरिजन करना है. कंपैरिजन किस चीज में होगा कि पहले के टाइम पर, अर्लियर टाइम्स पर क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एग्जिस्ट करते थे, और बिफोर कमिंग ऑफ एनी न्यू टेक्नोलॉजी हाउ द लाइफ वाज, एंड आफ्टर द कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी लाइफ कैसे चेंज हुई, और उस लाइफ ने एक्चुअली में कैसे कैसे अलग अलग सेगमेंट ऑफ द पीपल को अफेक्ट करना शुरू किया. Actually affected lives of the people, and these people belong to different segments of the society. Maybe the people might be belonging to labor class. The people might be that we are referring to in this chapter might be elite section of the society. Hence it has, the process of industrialization has impacted different sections of the society differently, that we are going to cover in this chapter. Okay, now first starting with the very first page of the chapter, हमारे पास यहाँ पर एक image है. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक इमेज दी है जिस इमेज को E.T. पॉल ने पेंट किया था. द नेम ऑफ द इमेज इज डॉन ऑफ द सेंचुरी. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इमेज. व्हाई? हमारे को इसका डिस्क्रिप्शन जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, इसको E.T. पॉल ने पब्लिश किया था. दिस वाज पब्लिश्ड इन इंग्लैंड 1900. ओके, नाउ व्हाट डज दिस इमेज डिपिक्ट टू अस? First of all, we come to the heading of the picture visual, dawn of the century. Dawn, what does the term dawn refers to? It is the time frame or the time period when we are referring to that there is some kind of change going on. ठीक है, जब हम रेगुलर मॉर्निंग से इवनिंग, इवनिंग से नाइट, ये जो टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब ये जो चेंजेस हम एक्सपीरियंस करते हैं, इसको यहाँ पर डॉन ऑफ द सेंचुरी एज एन सिंबॉलिज्म यूज किया है. द वर्ड हैज बीन यूज्ड एज एन सिंबॉलिज्म दैट द चेंजेस व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग पीरियड, व्हाट द चेंजेस सजेस्ट टू अस. Okay, now the first thing that we see is that angel of progress. Okay, the image of a lady, this image of a lady, she is here presented here as an goddess like figure, and she is bearing a flag in one of the hands. Now what does that raised flag means? That we are welcoming a new era. Okay, we are welcoming a new era. We are here set to adopt whatever changes might come in our way. So the flag which she is holding with an raised hand denotes that we are actually welcoming a new time period. Okay, now she is standing on a perched wheel. ऐसा बताया हुआ है that she is not standing on the ground. She is standing slightly above the level of ground, which says wheels has wings. The wheels has wings, that symbolizes time. Time कभी भी constant नहीं रहता, समय हमेशा बदलता रहता है, time हमेशा change होता रहता है. तो जो time का change है वही एक one of the key component है that remains constant, otherwise the time goes on changing. The symbols, it actually symbolizes time over here, and the flight that she is taking, that she is not standing on the ground, she is standing above it.
द फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर, कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। उस फ्यूचर में हम क्या क्या देखते हैं, अगर हम इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में हमें अलग अलग तरह की कुछ चीजें हैं बनी हुई जो दिख रही हैं। जैसे हमें रेलवे का कोई इंजन है, ट्रेन का इंजन है जो हमें बना हुआ दिख रहा है, हमें कोई मोटर व्हीकल है जो कि बनी हुई दिख रही है, हमें व्हील का इनोवेशन यहाँ पर दिख रहा है, हमें और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रहे थे वो सब चीजों को हम टाइम से सिंबलाइज कर रहे हैं कि these are the changes what we are going to see in the near future. Okay, floating railway, camera, machine, printing press and factory, these are signs of progress, that we are now progressing, we are now moving towards a new phase. So these are pursued as signs of progress, development you can say. Now in contrast, ठीक है, we have two pictures for comparison. Okay, in contrast what we have, the picture is divided into two parts. The above part is named as two magicians. Okay, and the lower part is actually published, it was published in by 26th January 1901. जो हमारी second image है, ये वाली जो image है, ये actually में हमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड के इमेजिनेशन करवा रही है। कॉन्ट्रास्ट क्या बता रहा है हमको यहाँ पर, जो कॉन्ट्रास्ट है वो ये है, जो टू मैजिशियंस पेंटिंग है जो अबव वाला विजुअल है, दैट वाज पब्लिश्ड बाय इनलैंड प्रिंटर्स ट्रेड मैगजीन एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 26 जनवरी 1901। आप यहाँ पर जो इसकी की फीचर्स हैं इस विजुअल के, दैट इज वी आर सीइंग हियर अलादीन। ठीक है, आप बचपन में हम लोग ये जनरली एक कार्टून कैरेक्टर से इसको एसोसिएट करते थे, अलादीन का चिराग बोलते थे, ठीक है ना। एक टाइम वो था, मतलब इनका यहाँ पर रेफरेंस है कि एक टाइम वो था, व्हाट वाज पास्ट, जब डेवलपमेंट हुआ तो व्हाट दिस थिंग हैज डन। अलादीन का चिराग यहाँ पर एक डेवलपमेंट बताया गया है उस समय का, ठीक है, पुराने टाइम का वो एक डेवलपमेंट था, ठीक है। अब उस डेवलपमेंट को टेक ओवर किसने कर लिया, ये मॉडर्न मैकेनिक ने टेक ओवर कर लिया, ठीक। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये कॉन्ट्रास्ट ये बताया, बट ये कॉन्ट्रास्ट टाइम फ्रेम के साथ साथ जगह का भी बताया है। ऐसा माना जाता है कि हमारा कंपैरिजन हमेशा डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में वेस्टर्न नेशन से होता है, वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस, हम ये कॉमनली रेफर करते हैं हर चीज में। द डेवलपमेंट देखना है वेस्टर्न जगहों पर देखो, हमें अगर ड्रेसिंग सेंस देखना है तो वेस्टर्न स्टाइल वी शुड अडॉप्ट। वेस्टर्न स्टाइल हैज नाउ बिकम अ प्रोमिनेंट की टर्म जो हम बहुत कॉमनली और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ये जो यहाँ पर इमेजेस का कंपैरिजन है, ये हमको यही बता रहा है कि जो ऊपर वाली इमेज है जो कि स्लाइटली बैकवर्ड इमेज है ना, बैकवर्ड मानी जाएगी ना इसके कंपैरिजन में, ये जो बैकवर्ड इमेज है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो नीचे वाली इमेज है जिसमें मैकेनिक एक मॉडर्न पर्सन बताया हुआ है जिसके पास पूरे इक्विपमेंट्स हैं, जो कि हर चीज को बियर कर रहा है, दैट पर्सन और दैट इमेज इज शोइंग और पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको ये दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए कि ईस्ट और वेस्ट के यहाँ पर रेफरेंस लोकेशन वाइज प्लस अकॉर्डिंग टू व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स दीज प्लेसेस हैव, उनके हिसाब से क्या है यहाँ पर लोकेशन ली है, ठीक है। यस, सो व्हाट वी सी, इंडस्ट्रियल चेंजेस जब आए तो इंडस्ट्रियल चेंजेस बहुत ग्रेजुअली, कई जगहों पर बहुत ग्रेजुअल थे, बट कई जगहों पर हम क्या देखते हैं कि काफी रैपिड चेंजेस आ रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो वो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर आया, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्चुअली में एसोसिएट किया जाता है कि जहां जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, जहां जहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप होती गई, वहां वहां पर मॉडर्नाइजेशन ने उसको फॉलो किया। इट वॉज बैक्ड अप बाय मॉडर्नाइजेशन, द प्लेसेस स्टार्टेड बिकमिंग मॉडर्न, मॉडर्न in every respect, modern in respect to the way people used to think, the people where people were employed, how people used to accustom themselves, how the customs or the society was changing, these all are included in the same process of modernization, okay। तो modernization follow कर रहा था जहां जहां पर हम industrialization देखते जा रहे थे। अब ये start कहां से हुआ,
ये स्टार्ट हुआ इंग्लैंड से, ठीक है। यूरोप में सबसे पहली बार वेव आई थी जो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रही थी, ठीक है। अब कैसे प्रमोट किया, व्हाट डू वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, कमिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। coming up of industries on a very large scale is known as process of industrialization, okay। जब ये process हुआ तो कैसे हुआ, क्या changes है, हैंड लेबर को मशीन ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट चेंज, हैंड लेबर गॉट रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। जब मशीनरी को रिप्लेस कर रहा, जब हैंड लेबर रिप्लेस हो गया तो दैट मीन्स क्या हुआ, मशीन्स और ह्यूमन लेबर की हम एफिशिएंसी कभी मैच नहीं कर सकते, राइट। द प्रोडक्ट और द आउटपुट विच इज जनरेटेड पर यूनिट आइदर बाय एन ह्यूमन और बाय एन मशीन is going to be totally different, right? This is self understood. So hand labor got replaced with by machines. So machines started coming to the landscape on a very large scale, and this is what is the process is, what this process is known as. Factories started coming up, it started generating large scale production of goods. जितना ज़्यादा large scale production of goods होगा हम उतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली भी साउंड होते जाएंगे, नए इन्वेंशंस होते गए, नए इनोवेशंस होते गए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते गए, और इन सब ने क्या किया, प्रोसेस को बहुत एक्सक्लरेट कर दिया, उसकी रेट को इंक्रीज कर दिया। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, इनोवेशंस हुए, मशीन्स और फैक्ट्रीज का सेटअप हुआ, रेलवेज और स्टीम शिप्स का डेवलपमेंट हुआ, कॉलोनाइजेशन हो रहा था इंडिया में उस टाइम पर, और ब्रिटेन द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन ने इंडिया को ही कॉलोनी बना रखा था, ठीक है। अब इसका एक इम्पैक्ट ये है कि हम एक एस्पेक्ट तो टेक्नोलॉजी के उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, जहां पर हम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो मशीन को अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते तो वो हैंड लेबर को तो रिप्लेस कर देगा। हैंड लेबर अगर रिप्लेस हो गया तो नंबर ऑफ पीपल हु आर एंगेज्ड इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, उनका नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इन सब चीजों को फॉलो किया। जब ये पूरा सिस्टम चेंज हो रहा था यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, और बाकी धीरे धीरे करके यूरोपियन कंट्रीज से वो बाकी जगहों पर भी स्प्रेड आउट होना जब शुरू हुआ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने काफी हद तक हमारी लाइव्स को इजियर बना दिया था, ठीक है। जो चीज हमें पहले काफी मुश्किल से मिला करती थी वो चीजें अब हमें काफी ईज पर मिल रही, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा है, ठीक है। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिनेरियो क्या था, हैंड लेबर और स्टीम पावर, इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनीज में कैसे हुआ, फैक्ट्रीज दे स्टार्टेड कमिंग अप, इंडिया के रेफरेंस पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पिक्युलैरिटीज क्या थी इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, पिक्युलैरिटीज का मतलब है एनी डिस्टिंग्विश्ड फीचर व्हाट वी कैन एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एंड हाउ डिड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कुड इजीली सिक्योर अ मार्केट। मतलब आज के मॉडर्न कॉन्टेम्प्ररी टाइम्स में अगर हम बात करें तो उस टाइम पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी हुआ करती थी कि हाउ कैन वी सेल आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट, ओके। लेट्स मूव, ओके। फर्स्ट हेडिंग, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था, ठीक है। मेजरली जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा ड्रामेटिक चेंज आया था ना, वो टेक्सटाइल वाला सेक्टर था, कपड़ों वाला सेक्टर था। उस सेक्टर में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, और वो ही ऐसा सेक्टर था जो कि बहुत ज्यादा लेबर को एब्जॉर्ब करने वाला सेक्टर था। तो जैसे जैसे मशीन्स आती जाएंगी वैसे वैसे रिप्लेसमेंट होता जाएगा, होगा। तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता था, जो टेक्सटाइल थी, मतलब जो ब्रिटिश टेक्सटाइल बिजनेस था, दैट वाज अ ट्रू कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, जिसमें सारा काम स्मॉल वर्कशॉप्स में होता था, जो कि आप बोल सकते हो एक तरीके की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो कि बेसिकली लोगों के घरों में ही चल रही थी। इसमें प्रोसेस सब होते थे, जैसे स्पिनिंग भी होगी, वीविंग भी होगी, डाइंग भी होगी, पर ये प्रोसेस कैसा था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, और एफिशिएंसी भी डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
जैसे जैसे कॉलोनीज को अक्वायर किया गया वैसे वैसे और वर्ल्ड ट्रेड एक्सपैंड हो रहा था, तो डिमांड जो थी गुड्स की वो इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। ठीक है, ट्रेड गिल्ड जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो ट्रेड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, बट वो जो ट्रेड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उनका मतलब ये था कि पहले ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड हुआ करता था। ठीक है, आप हर रीजन में आसानी से जाकर ट्रेड नहीं कर सकते, वो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट था। ठीक है, क्यों था? क्योंकि आपके ऊपर इतने टैक्सेस इम्पोज करे गए हैं कि आप अफोर्ड ही नहीं करोगे कि वाई विल आई पे सो मेनी टैक्सेस, और उसके लिए मेरे को प्रॉफिट अगर उतना ज्यादा नहीं हो रहा तो वाई विल आई प्रेफर टू सेल दिस प्रोडक्ट इन एनी अदर मार्केट प्लेस। तो merchants they were unable to expand the production in towns। इन guild restrictions की वजह से जो merchants थे वो बहुत localized area में production करते थे। ठीक है, और उससे maximum लोगों को employment जो था वो मिला हुआ था। ठीक, अब एक ऐसा टाइम पीरियड भी हम देखते हैं जो कि ट्रेड जो गिल्ड्स थे these were restriction or network of commercial exchange and this was controlled by the merchants। ठीक है, merchants from the towns and the cities they started moving to the कंट्री साइड। उन्होंने कंट्री साइड की तरफ मूवमेंट करना जो था वो शुरू किया। जब वो कंट्री साइड की तरफ गए तो उनको ऐसा लगा कि जब लोग चीप लेबर में वर्क करने को रेडी हैं, ठीक है ना, जब लोग चीप लेबर में आराम से वर्क करने को रेडी है तो वाई शुड बी अफोर्ड और वाई शुड बी गो फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। लोग वहां पर आराम से काम करते थे। अब क्या होता है कि ऐसा टाइम आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो फैमिलीज को क्या करते थे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे फॉर स्पिनिंग वीविंग एंड सीविंग यूनिफॉर्म्स। ठीक है, ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि ब्रिटिश आर्मी के लिए मतलब हर चीज जो थी वो घर में बन रही थी, डोमेस्टिक थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी काइंड ऑफ। अर्ली 19th सेंचुरी में हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश आर्मी के लिए जब यूनिफॉर्म्स को सीयू करने की बारी आई, जब स्टिच करने की बारी आई, तो दिस वाज डन अंडर द डोमेस्टिक this was done with the domestic help or putting out system that preceded the factory system। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हो रहा था तो उससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि आज एकदम से हमने किसी को बोला कि आप कल से मत आना। ठीक है, ये जो चेंजेस थे ये ग्रेजुअल चेंजेस थे। तो वो जो ट्रांजिशन का फेज था, जब वो बदलने का फेज था, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्चुअली रेफर्स टू start or the beginning or early start or early beginning of something। Many historians now refer to this phase of industrialization as proto industrialization। इस टाइम फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। कंट्री साइड में हम क्या देख रहे थे, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर जो ओपन फील्ड्स अवेलेबल थे, जो ओपन स्पेसेस अवेलेबल थे, जो कॉमन लैंड्स थे, जो कि कॉटेजर्स और पुअर पीजेंट्स को एक्चुअली में आप साल भर इस वर्क की अश्योरेंस नहीं दे सकते। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो आप 12 मंथ्स इन एन ईयर आप बिजी नहीं रह सकते, और 12 मंथ्स इन एन ईयर आप रेवेन्यू भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास अदर या ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी था। तो क्या हुआ कि जब लोगों के पास एडवांसेस आने लग गए, जब लोगों को ऑलरेडी रॉ मटेरियल मिलने लग गया और जब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गया दैट यू हैव टू एक्चुअली गिव दिस आउटपुट इन ड्यूरेशन ऑफ दीज डेज, तो हुआ क्या कि डिसअपियरेंस ऑफ ओपन फील्ड्स, मतलब लोगों के जो कॉमन ग्राउंड्स थे या ओपन फील्ड्स थे वो डिसअपियर होना शुरू हो गए। जो कॉमन लैंड्स थे उनको they were now forced to search for some alternative work and they started working for the merchants to supplement their shrinking income। ठीक है, इसी तरीके का एक टेक्नोलॉजिकल चेंज जो उस टाइम पर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, दैट वाज स्पिनिंग। ठीक है, आप जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक बहुत छोटा सा एक मशीनरी है, डोमेस्टिक है। तो इसमें हम एक लेडी को देख रहे हैं कि वो स्पिन कर रही है। ठीक है, शी इज स्पिनिंग। तो ये जो स्पिनिंग का प्रोसेस था, ये स्पिनिंग का प्रोसेस भी मेंबर ऑफ द फैमिली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ यार्न। वन व्हील इज मूविंग ओनली वन स्पिंडल।
ठीक है, सिर्फ एक स्पिंडल मूव करता था एक व्हील पर, तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। ठीक है, अगर हम एक मर्चेंट का, क्लॉदियर का इंग्लैंड में काम देखें तो उनका क्या क्या काम था, उनकी टास्क क्या क्या थी। सबसे पहला था दैट दे यूज टू फर्स्ट परचेज वूल फ्रॉम द स्टेपलर, जहां से वो वूल खरीदते थे, परचेज करते थे, उसको बोला जाता था वूल स्टेपलर, उसको बोला जाता था वूल स्टेपलर। ठीक है, स्टेपल द वूल, कैरिड इट टू द स्पिनर। नेक्स्ट टास्क होती थी कि उसको हमको स्पिन करना है। ठीक है, जब वो स्पिन होता था तो वीवर्स को दे दिया जाता था जहां पर उसका प्रोडक्शन होता था। ठीक, फिर उस कपड़े को एक्चुअली फुलर्स जो होते थे वो प्लीट करते थे, ठीक, फिनिशिंग के लिए, और उसको कलर करने के लिए डायर्स के पास फाइनली भेजा जाता था। डाइंग जो थी, डाइंग होने के बाद फिनिशिंग सेंटर, वन ऑफ द प्लेसेस जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है एज फिनिशिंग सेंटर इन यूरोपियन कंट्रीज, लंदन। तो लंदन को हम फिनिशिंग सेंटर के नाम से, इट वाज फेमस एज एन फिनिशिंग सेंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ कि फैक्ट्रीज जब स्टार्ट हुई आना, तो अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड दे केम अप इन द 1730s। ठीक है, सबसे पहली फैक्ट्रीज का हम अराइवल 1730s में देखते हैं। कॉटन, मैंने जैसा अभी आपको बताया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रैपिड चेंजेस आ रहे थे, तो कॉटन बिकेम द लीडिंग सेक्टर। सबसे फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में कॉटन की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चेंजेस आए। रिचर्ड ऑकराइट जो थे, उन्होंने कॉटन मिल को इन्वेंट किया है। 1716 ब्रिटेन में, ब्रिटेन लगभग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन को इंपोर्ट कर रहा था, एंड बाय 1787 ये जो इंपोर्ट था ये 22 मिलियन पाउंड्स पर इंक्रीज हो चुका था। इन्वेंशंस के, जैसे इन्वेंशंस हुए तो उस इन्वेंशन ने आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज कर दिया था। जो प्रोसेस था दैट वाज ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता था तो इसका मतलब क्या है, पहले हम, अगर इससे पहले वाली अगर हम स्लाइड चेक करें तो इससे पहले वाली स्लाइड में हमें ये बताया है कि हमको हर काम अलग अलग जगह पर करवाना है, हर काम एक ही जगह पर नहीं हो रहा। वीवर अलग होगा, स्पिनर अलग होगा, स्टेपलर अलग होगा, फुलर अलग होगा और डायर अलग होगा। अब अगर हम ये सारे टास्क को एक ही जगह पर असेंबल करवा दें, ठीक है, इफ यू असेंबल ऑल दीज टास्क एट वन सिंगल प्लेस, व्हाट विल हैपन, the work or the quality, actually if I am owner of a factory, I could easily keep a check on the worker। ठीक है, मेरे लिए वर्कर पर चेक रखना बहुत आसान हो गया, तो मैं क्वालिटी पर भी चेक रख सकती हूँ, मैं बहुत इजीली टाइम को मैनेज कर सकती हूँ। मेरे पास ये भी होगा कि मेरे को कितना रॉ मटेरियल सप्लाई करने की जरूरत है, वेस्टेज के ऊपर भी मैं चेक रख सकती हूँ। ये मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है। ठीक है, अगर ये सब काम, ये सारे प्रोसेस होने तो होने हैं, ये सारे प्रोसेस अगर एक सिंगल रूफ में हो जाते हैं तो, ठीक है। अगर हम एक इमेज देखें तो ये इमेज इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर बाय एम जैक्सन, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, chimneys billowing smoke came to be characterized as an important feature of industrial landscape। ठीक है, अब अगर हम इसका पेस देखें तो पेस कैसा था, मतलब हाउ वॉज द इंडस्ट्रियल चेंजेस कमिंग अबाउट, द पेस का मतलब है स्पीड। तो फर्स्ट अगर हम देखें, कॉटन वॉज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज। ठीक है, डिमांड आयरन और स्टील की ये भी इंक्रीज होती गई जैसे जैसे रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ। सेकंड है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली बी रिप्लेस्ड। ठीक है, जो पेस था उसमें हमें ये बताया है कि नो डाउट चेंजेस आ रहे थे, इंडस्ट्रीज बन भी रही थी, सेटअप भी हो रही थी, उन सब चीजों में कोई बैरियर नहीं था, जो चीज हो रही थी वो अपने पेस से चल रही थी। बट व्हाट कैन वी सी कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस इज दैट द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इजीली रिप्लेस नहीं हो सकती थी न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से। 20% पीपल जो थे वो फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड थे। थर्ड हम क्या देखते हैं कि स्लो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ मशीन्स, ये बेसिस था किसका, ग्रोथ का। ठीक, क्योंकि क्या है कि मशीन अगर आपको खरीदनी है
तो मशीन कैसी होगी, कॉस्टली होगी। ह्यूमन लेबर आपके लिए कैसा वर्क कर रहा है, चीप वर्क कर रहा है। आप एकदम से, मैं अगर आपको आज बोलूं कि ऐसी कोई मशीन आई है बाजार में, कोई भी XYZ, कोई भी प्रोडक्शन के लिए अगर हम बोले कि ऐसी कोई मशीन है, तो आपके मन में एक सेकंड थॉट जरूर आता है कि यार हम किसी और से एक बार रिव्यू ले लें, वी शुड ऑल्सो गेट एन सेकेंड ओपिनियन कि मशीन कैसी है। अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये चीज हमेशा से रही है। उस टाइम पर जब चेंजेस आ रहे थे तब भी ये कांस्टेंट चीज थी लोगों के माइंड में, जो बिजनेस क्लास थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, दैट इफ वी टेक दिस मशीन, हम इसको मेंटेन कैसे करेंगे, हमारे पास इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आएगी, हम उससे सस्ता क्या हैंड लेबर अफोर्ड कर रहे हैं। तो इजीली लोगों ने डिस्प्लेस नहीं किया था कि हैंड लेबर को कंप्लीटली डिस्प्लेस कर दिया और हम मशीन्स लाकर सेटअप कर दी। लोगों को चलाना भी आना चाहिए, उसको ऑपरेट करना भी आना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस भी आनी चाहिए, और उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट इफेक्टिव है भी कि नहीं, ये भी हमको चेक करना जरूरी था। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो थे, दीज वर एक्चुअली अकरिंग स्लोली, इतने फास्ट नहीं थे। हमारे पास एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है स्टीम इंजन का। स्टीम इंजन जेम्स वॉट जो थे उन्होंने इम्प्रूव किया था, जो पहला स्टीम इंजन न्यू कमन ने, थॉमस न्यू कमन ने बनाया था, और जब उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट किया तो उसको पेटेंट कर दिया था न्यू इंजन को 1781 में कि ये मेरा कॉपीराइट है, इसमें जो चेंजेस करे वो मैंने करे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल फ्रेंड जो थे, उनके खुद के इंडस्ट्रियल फ्रेंड जो थे, मैथ्यू बोल्टन नाम था उनका, उन्होंने नया मॉडल को मैन्युफैक्चर किया, उनसे और इम्प्रूव्ड मॉडल को मैन्युफैक्चर किया, बट इतना इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी काफी लंबे समय तक उनको कोई बायर नहीं मिला, नो वन परचेज्ड दैट। Beginning of the 19th century, there were no more than 321 steam engines all over England. Out of these, 80 were in cotton industry, 9 in wool industry, and the rest in mining and canal works. स्टीम इंजन जो थे, दे वर नॉट यूज्ड इन एनी अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं था और कोई इंडस्ट्री में। मोस्ट ऑफ द पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्टिविटी को भी एनहांस कर रही थी, उसको भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने इजीली एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो हमें इससे ये पता लगता है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे वो इतना आसान नहीं था, इतना ज्यादा इजी नहीं था, जिसको भी अडॉप्ट करना है उसके लिए भी। ठीक है, अब क्या हुआ, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, क्योंकि लोगों को चीप लेबर मिल रही थी ओवर हाई कॉस्ट मशीन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हम क्या देखते हैं, जो डिमांड थी लेबर की वो सीजनल थी। ठीक है, हमेशा लोग बिजी नहीं रहते थे, सीजन बेस्ड वर्क था। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मशीन्स को इसलिए भी नहीं लाना चाहते थे कि हमें ह्यूमन लेबर से, वी डू नॉट वांट टू गेट रिड ऑफ ह्यूमन लेबर, बिकॉज उसके लिए हमें बहुत अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे पर्टिकुलरली ब्रूवरीज जो थी, या फिर जो प्रिंटिंग मशीन्स में काम किया करते थे, वो पर्टिकुलरली कोल्ड मंथ्स के टाइम पर बिजी रहते थे। तो इनका वर्क कैसा हो गया, सीजन बेस्ड हो गया, साल के 12 महीने बिजी नहीं है, क्रिसमस के आसपास, फेस्टिवल्स के आसपास वो लोग बिजी रहते थे। ब्रूवरीज में जो ब्रू होता था लिकर, वो ब्रू होने वाला भी टाइम विंटर्स का टाइम होता था, तो उनका जॉब कैसा हो गया, सीजन बेस्ड वर्क हो गया। ठीक है, हैंड लेबर को ज्यादा प्रेफरेंस भी मिलती थी एट सर्टेन पॉइंट। एग्जाम्पल लेते हैं आज के टाइम से, एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल आई गो टू द मार्केट टू परचेज अ साड़ी। ओके, मैं एक साड़ी परचेज करने के लिए बाजार जाती हूँ। when I go there, I am shown with two pieces. Okay, one piece, although both of them might have same appearance, ठीक है, दोनों की सेम अपीयरेंस है, मेरे को शॉपकीपर बोलता है कि ये एक जो एक पीस है इसकी कॉस्ट है 9000, जो दूसरा पीस है उसकी कॉस्ट है 1000। ठीक है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जब दोनों चीजें सेम दिख रही हैं तो उनकी कॉस्ट में इतना अंतर क्यों है। ठीक है, फिर मेरे को शॉपकीपर ही एक्सप्लेन करता है कि जो आपको चीज 9000 की दिख रही है उसमें हमने हर चीज को इंट्रिकेट बनाया है विद द हेल्प ऑफ लेबर। ठीक है, वो मशीन का वर्क नहीं है, मशीन से अगर ये काम करें तो मशीन का काम तो बहुत सस्ता हो जाता है, पर अगर हमने वही चीज के लिए हैंड लेबर को
हायर किया है तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टीज ऐड होती जाएंगी तो वो उस चीज के कॉस्ट को इंक्रीज करेगा ही करेगा, प्लस द लेबर दैट दे आर पुटिंग इन। जो हैंड लेबर था उसकी प्रेफरेंस एलीट सेक्शन में बहुत ज्यादा थी। ठीक है, मैं अगर अब मेरे को लेना होगा तो अगर मेरी पॉकेट मुझे अलाउ करती है तो मैं बोलूंगी यार हैंड लेबर है, किसी ने हाथ से बनाया है, यूनिक होगा, अलग होगा, हमको इसका कॉपी नहीं मिलेगा, मैं ये चीज को परचेज करना प्रेफर करूंगी। तो हैंड लेबर के लिए, मैनुअल लेबर के लिए प्रेफरेंस अभी भी थी। किसके लिए थी? एलीट सेक्शंस जो थे वो एलीट सेक्शंस अभी भी सिर्फ और सिर्फ हैंड लेबर को प्रेफरेंस देते थे। विक्टोरियन ब्रिटेन में जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे वो एरिस्टोक्रेट्स बहुत प्रेफर करते थे और बूजर क्लास जो थी, जो रिच क्लास थी, वो बहुत ज्यादा प्रेफर करती थी। बट लेबर शॉर्टेज होने की वजह से मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा कई जगहों पर। जैसे यूएसए के अंदर लेबर शॉर्टेज क्योंकि ज्यादा थी तो वहां पर जो डिपेंडेंसी थी वो मशीन्स के ऊपर ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, वर्कर्स की लाइफ को अगर हम देखें तो वर्कर्स की लाइफ ऐसी थी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की न्यूज स्प्रेड आउट होना शुरू हुई तो लार्ज स्केल माइग्रेशन हम देखते हैं। कहां पर? सिटीज में, इन सर्च ऑफ जॉब। जो जॉब सीकर्स थे उनको बहुत लॉन्ग वेट करना पड़ता था, स्पेंडिंग नाइट्स ऑन द रोड, क्योंकि आप जब ये न्यूज स्प्रेड होना शुरू हुई कि वहां पर फैक्ट्री सेटअप हुई है तो एवरीवन हु वाज विलिंग टू वर्क ऑब्वियसली केम टू द प्लेस कि हमको वर्क करना है, वी ऑल्सो नीड जॉब। पर वो जॉब की सर्टनिटी तो थी नहीं, वो कितने टाइम में मिलेगी, किसको मिलेगी, इसका भी किसी को अंदाजा नहीं था। तो जॉब सीकर्स जो थे दे हैड टू वेट फॉर वीक्स, दे हैड टू स्पेंड नाइट्स ऑन द रोड्स। वर्कर्स दे बिकेम जॉबलेस आफ्टर सीजन ऑफ वर्क एंड दैट obviously got over. There was also fear of unemployment that made workers very hostile कि हम जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती जाएगी वैसे वैसे हमारे ऊपर डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, तो उनको ये खतरा था कि हमारी नौकरी कहीं हमसे चली ना जाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ की वर्ड्स हैं जो कि हमको याद रखने की जरूरत है, जैसे स्पिनिंग जेनी। ठीक है, हमने आगे की कुछ स्लाइड में एक इमेज देखी थी जिसमें एक स्पिंडल, एक लेडी जो थी, शी वाज मूविंग दैट स्पिंडल। स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स ने डिवाइस करी थी 1764 में। ये जो मशीन डिवाइस करी थी दैट स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस, इट रिड्यूस्ड लेबर डिमांड, turning one single wheel, a worker could now set in motion a number of spindles and spin several threads at the same time. ठीक है, ये इसकी कॉन्ट्रास्ट है। ये मशीन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये स्पिनिंग जेनी है, ये इसका कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, कंपैरिजन है। हमारे पास यहाँ पर एक सोर्स दिया है जिस सोर्स में ये बताया कि एक मजिस्ट्रेट थे, अ मजिस्ट्रेट रिपोर्टेड इन 1790 अबाउट एन इंसिडेंट व्हेन ही वाज कॉल्ड इन टू प्रोटेक्ट अ मैन्युफैक्चरर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग अटैक्ड बाय वर्कर। वर्कर जो थे वो हॉस्टाइल हो रहे थे, ठीक है, उनको बहुत खतरा था कि हमारी नौकरी ना चली जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्कर्स ने उनको अटैक करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि ऐसा कभी ना हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 3 फेज है। ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3 key terms? Very important, you should actually learn it by heart. आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब, सबसे पहले हम प्रोटो पढ़ते हैं। प्रोटो का मतलब है पीरियड बिफोर बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो हो गया प्रोटो। ठीक है, industrialization, the process by which an economy transforms from primarily agriculture to one based on manufacturing of goods. The third one, industrial revolution. Revolution क्या होता है? That replace the cottage industry with the help by factories, और factories के अंदर क्या था? Only and only machines. ठीक है, हमको एक बहुत अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल है सुई धागा। अगर आपने मूवी देखी हो तो इस मूवी में हमको ये देखना है कि इंडिया में कैसे चेंजेस आ रहे थे, कॉलोनीज में कैसे चेंजेस आ रहे थे, वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉलोनी बीइंग इंडिया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, इंडिया का अगर हम रेफरेंस देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया
सबसे पहला चेंज आया इंडियन टेक्सटाइल्स में, ठीक है। टेक्सटाइल्स में फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई। फैक्ट्रीज जब बनी तो उनके कुछ पिक्युलैरिटीज थी। इंडिया ने एज एन मार्केट प्लेस कौन सी प्लेस अडॉप्ट करी और कैसे मार्केट बना इंडिया, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया हेल्ड अ ग्लोबल मोनोपोली ओवर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। 3000 ईयर्स तक सिर्फ हमारी कंट्री की मोनोपोली थी, कोई और उसको कॉम्पीट भी नहीं करता था। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन करंटली। Cotton is grown on 2.5% of the world's arable land. Under the Mughal Empire, Indian cotton production also got increased. ठीक है। अब इंडियन टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें तो इंडियन टेक्सटाइल्स की बात में हमारे पास क्या क्या सप्लाई चेन्स हैं या क्या क्या मीडियम्स थे जिससे कि इसका सप्लाई किया जाता था। सिल्क एंड कॉटन गुड्स इंडिया के ये इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा से डोमिनेट करते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी की वजह से वो हमेशा डोमिनेट करते थे। अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया, सेंट्रल एशिया bought फाइनर कॉटन फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया से फाइनर कॉटन खरीदते थे। इंडिया कनेक्टेड था गल्फ और रेड सी पोर्ट से, सूरत के थ्रू कनेक्टेड था गुजरात कोस्ट पर, मसूलीपट्टनम था कोरोमंडल कोस्ट पर और हुगली था बंगाल में। और जो ट्रेड लिंक्स थे, ये ट्रेड लिंक्स काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिंक्स थे। सप्लाई मर्चेंट्स क्या करते थे, वो वीवर्स को एडवांसेस दिया करते थे, एडवांस में पेमेंट कर दिया करते थे। सप्लाई मर्चेंट्स प्रोक्योर्ड क्लॉथ फ्रॉम द वीवर्स, उनसे क्लॉथ खरीद लेते थे। ब्रोकर्स ब्रॉट गुड्स फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट्स और फिर उसको बिग शिपर्स और एक्सपोर्ट मर्चेंट्स जो है वो ब्रोकर से खरीद लेते हैं। ब्रोकर वो स्टेज है या वो पर्सन है जो कि प्राइस को नेगोशिएट करने का काम करता था, स्पेशली जब हम कोई भी चीज का एक्सपोर्ट करते थे तब। 1750s तक ये जो नेटवर्क था ये इंडियन मर्चेंट्स के फुल कंट्रोल में था, पर धीरे धीरे करके ये जो कंट्रोल था ये इंडियन मर्चेंट्स के हाथ से खिसकता जा रहा था, या ये जो चेन थी ये चेन धीरे धीरे करके वीक होती जा रही थी। यूरोपियन कंपनीज दे हैड गेन्ड पावर, क्योंकि यूरोपियन कंपनीज पावर में आ गई तो उनके पास अब मोनोपोली राइट हो गया। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो छोटी क्लासेस का, तो हमको एक 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ठीक है। आई नो बहुत मुश्किल होगा याद करना, पर एक चैप्टर था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। उस चैप्टर में हमें इस चीज की रेफरेंस दी है कि एक्चुअली में यूरोपियन कंपनीज जो थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमको सीधे कॉलोनी नहीं बनाया, इंडिया सीधे कॉलोनी नहीं बना, इंडिया को भी एक प्रोसेस से होकर निकलना पड़ा। वो प्रोसेस क्या था कि सबसे पहले उन्होंने हमको इंपीरियलाइज किया, ठीक है, हमारे साथ मर्केंटाइलिज्म किया। मर्केंटाइलिज्म का मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज में मॉडर्न टर्म्स में अगर हम बात करें, बिजनेस करना। तो हम जब बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस का एक बेसिक फंडा क्या होता है कि आप चीज खरीद रहे हो और आप सेल कर रहे हो, दो पार्टीज है, सेलर और बायर। तो सेलर और बायर में क्या होता है, कनेक्शन किससे है कि बायर बेचेगा, सेलर खरीदेगा, रिटर्न फॉर मनी, ठीक है। तो सबसे पहली जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो स्ट्रैटेजी रिलेटेड थी कि हमको सबसे पहले तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लिंक्स को स्टैब्लिश करना है। भारत की लोकेशन क्योंकि ऐसी थी, इतनी ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी कि भारत को कोई इजीली हरा ही नहीं सकता था और यहाँ से ट्रेड करना बहुत आसान था। प्लस यहाँ के लोगों को उस समय पर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत तो थी ही सही, तो इन सब फैक्टर्स का फायदा उठाते हुए उन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया है इंडियन मार्केट को। यूरोपियन कंपनीज ने मोनोपोली राइट्स गेन कर लिए थे कि अब सिर्फ हमारे पास राइट्स है। जैसे उन्होंने पावर को कंट्रोल किया अपने पास, तो उन्होंने बोल दिया कि अब सिर्फ हमारे पास मोनोपोली राइट्स है और कोई ट्रेड नहीं कर सकता। उन्होंने ये जो ट्रेड पोर्ट्स थे, मतलब ये जो ट्रेडिंग थी, उन्होंने नए पोर्ट से स्टार्ट करना शुरू करी। जो सूरत और हुगली पहले हुआ करते थे, सूरत और जो दूसरा पोर्ट था उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया कैलकाटा और मुंबई में, ठीक है। ट्रेड जो था वो धीरे धीरे सूरत से और मसूलीपट्टनम से यहाँ से डिक्रीज होना जो था वो शुरू हो गया। ट्रेड बिगैन ड्राइंग अप इन सूरत एंड इट फेल फ्रॉम 16 मिलियन टू 3 मिलियन। सूरत और हुगली में भी डिके हम देख सकते हैं। बॉम्बे और कलकत्ता उस टाइम पर लैंडस्केप पर राइज कर रहे थे क्योंकि वो नए पोर्ट्स थे जहां से वो ट्रेड किया करते थे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक इमेज है कि बॉम्बे और कलकत्ता जो थे दे वर ग्रोइंग एज न्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स फ्रॉम द 1780s।
ये मार्क करता है डिक्लाइन ऑफ ओल्ड ट्रेडिंग पोर्ट्स एंड द ग्रोथ ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी। ये एक और इंडिकेटर था कि कॉलोनियल पावर जो है वो अब स्ट्रेंथन होना शुरू हो गई है इंडिया में, वो अब ग्रो कर रही है। ठीक है, अब क्या है इस कंडीशन में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आ चुकी थी, हम यहाँ पे कॉलोनीज की बात करें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पावर में आ चुकी थी, तो इट after the 1760s did not lead to a decline in the textile exports from India. फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज और जो लोकल ट्रेडर्स थे उन्होंने मार्केट में बहुत कॉम्पीट किया था ताकि हमारी पोजीशन एक सिक्योर हो सके। East India Company developed a system of management and control that would eliminate competition, control cost and ensure regular supply of goods. ठीक है, उन्होंने ये चीज इंश्योर कर ली थी। कैसे करी? उन्होंने एक पेड सर्वेंट को हायर किया जिसको बोला जाता था गोमास्ता। ठीक है, गोमास्ता जो थे वो एक पेड सर्वेंट थे। पेड सर्वेंट का काम ये था कि वो सुपरवाइज करता था, कंट्रोल करता था वीवर्स को डायरेक्टली। एक तरीके से आप बोल लो कि एक मीडिएटर है। ठीक, एक मीडिएटर है जो कि गोमास्ता क्या कर रहा है, गोमास्ता उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ एडवांसेस, उन्होंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया है। ठीक, इसके आउटकम क्या आए, क्या चेंजेस हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं? जो डिमांड थी कॉटन की बहुत हाई थी, तो फार्मर्स ईगरली टुक द लोन। ठीक, उन्होंने बहुत इजीली एडवांस को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, हम लोन ले लेते हैं, होपिंग टू अर्न मोर। पूरी की पूरी फैमिली एंगेज होना स्टार्ट हो गई डिफरेंट प्रोसेस में। वीवर्स दे लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन, उन्होंने, क्योंकि उनकी शर्तों पर अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आप उनकी शर्तों को मान लेते हो, तो दे लॉस्ट स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइजेस एंड गॉट ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ लोन्स। ठीक है, वीवर्स वर बीटन अप एंड फ्लॉग्ड बाय सेपॉयज। अगर एडवांस ले लिया और अगर आप सप्लाई टाइम पर नहीं दे पाए, तो जो गोमास्ता था वो होता तो एक मीडिएटर था, तो वो एक इंडियन था। ठीक है ना, पर उसने कभी कंडीशन नहीं समझी वीवर्स की। तो अगर आप सप्लाई टाइम पर नहीं दे पाए तो फिजिकली फिर उनको बहुत मारा पीटा जाता था एंड दे वर फ्लॉग्ड इन बाय द सिपॉयज। ठीक है, 1772 में हेनरी पुटोलो थे कंपनी के ऑफिशियल, उन्होंने कोट किया था कि जो डिमांड है इंडियन टेक्सटाइल्स की ये रिड्यूस नहीं हो सकती, तो हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि कोई भी नेशन ऐसा नहीं है कि वो सेम क्वालिटी का गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। 1811-12 में piece goods accounted for 33% of India's export. By 1850-51 it was no more than 3%. ठीक है, अब क्या हुआ, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। ब्रिटेन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने हेवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगानी शुरू कर दी थी कॉटन टेक्सटाइल्स पर। तो मशीन मेड जो टेक्सटाइल थी मैनचेस्टर से, उन्होंने मार्केट्स को फ्लड करना शुरू कर दिया। मतलब बाजार में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज मिलेंगे टेक्सटाइल, मैनचेस्टर मेड। ठीक, मैनचेस्टर का जो मार्केट था, अब आप एक कॉमन सी बात सोचो, हम अभी काफी ज्यादा अपने, अगर हम कोई चीज बाहर से लेते हैं, खरीदते हैं, तो हम उसको बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, वी फ्लॉन्ट इट, राइट, एज इन की दिस इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो ये चीज उस टाइम पर भी ऐसे नहीं थी कि हमको उसका एडवर्टाइजमेंट करना है या हमको उसके लिए मार्केट सिक्योर करना है, बट it was like in that we are wearing something which is not from India, it is an imported material, it is made from Manchester, और ये जो चीज़ है ये बहुत चीप आ गई है, बहुत सस्ती आ गई है, प्लस द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज ऑल्सो अ फैक्टर। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट थी उसकी कॉस्ट ज़्यादा ही होती थी, राइट। तो मैनचेस्टर मेड जो गुड्स थे उन्होंने मार्केट प्लेस को अक्वायर करना शुरू कर दिया था। ठीक, imported cotton goods were very cheap, tough competition for the weavers. Cottonopolis was a 19th century nickname for Manchester. ठीक है, जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो कोलैप्स होना शुरू हुआ और जो लोकल मार्केट था वो श्रिंक हो गया, ये कंडीशन आ चुकी थी। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, जब अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो कॉटन सप्लाईज जो यूएस से जाते थे दे वर कट ऑफ, ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, तो फैक्ट्रीज इन इंडिया स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन, फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन मेड गुड्स। ओके, हमारे पास यहाँ पर दो सोर्सेज दिए हैं, ये सोर्सेज हमें एक्चुअली में ये बताते हैं कि हाउ द कंडीशन ऑफ वीवर्स वाज
एक्सपैंडिंग। अमेरिका की जो सिविल वॉर है वो स्टार्ट हुई थी 1861 टू 1865, fought between northern United States and southern United States. Civil war began primarily as a result of long standing controversy over the enslavement of the black people. ठीक, अब क्या हुआ, इंडिया में जो फैक्ट्रीज थी वो स्टार्ट होती हैं। अब इंडिया की जो फैक्ट्रीज थी उसमें 1854 में सबसे पहली कॉटन मिल बनी बॉम्बे में, फिर फर्स्ट जूट मिल बंगाल में, 1862 में सेकंड, 1860 में कानपुर में एल्गिन मिल, 1861 में फर्स्ट कॉटन मिल इन अहमदाबाद, 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल इन मद्रास। ठीक है, कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स के नाम हैं हमारे पास, जमशेदजी, जेजी बॉय, मतलब टाटास का तो नाम हम ऑब्वियसली लेते ही हैं। क्या होता था कि ये जो ट्रेड था, ये जो लिंक था, ये एक चैनल के थ्रू होता था कि ओपियम दैट वाज सेंट टू चाइना फ्रॉम इंडिया, इंडिया से चाइना भेजा जाता था। ब्रिटेन अर्नड मनी टू मीट होम चार्जेस, और इन रिटर्न वो वहां से क्या खरीदते थे, चाय खरीदते थे चाइना के साथ। तो ओपियम यहाँ से भेजा जाता था, वहां से इन रिटर्न में टी जो थी वो हमारे पास आती थी। अर्ली एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो द्वारका नाथ टैगोर हैं बंगाल में, जिनका ट्रेड लिंक था चाइना से, जिन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज 1830s और 1840s के बीच में स्टैब्लिश करी थी। दिनशॉ पेटाइट एंड जमशेदजी नुसरवानजी टाटा बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स इन इंडिया। सेठ हुकुमचंद, he was a मारवाड़ी बिजनेसमैन, set up the first Indian jute mill in Calcutta. ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर believed that India would develop through westernization and industrialization. He invested in shipping, shipbuilding, mining, banking, plantation and insurance. ठीक है, कुछ पार्टनर्स के नाम यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं। अब क्या हुआ, एंटरप्रेन्योर्स ने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो उस टाइम पर फेस करी। कॉलोनियल कंट्रोल इंडिया में था ही सही, ट्रेड बहुत टाइट था क्योंकि ट्रेड इतना इजी नहीं हुआ करता था। द ट्रेड रूल्स वर सच स्ट्रिक्ट दैट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कुड नॉट इजीली राइज, दे वर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप, ठीक है, इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स, रॉ कॉटन, ओपियम, ठीक है, raw cotton and opium. European managing agency Bird, Higglers and Company, Andrew Yule and Jardine Skinners and Company, इन्होंने कैपिटल मोबिलाइज करने का काम किया है। 6 जॉइंट सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनीज। यूरोपियन मर्चेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन इन, ठीक है, इंडियंस को अलाउड नहीं था, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को अलाउड नहीं था कि दे कुड इजीली ज्वाइन दीज प्लेसेस। ठीक, अब जो अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स थी उसकी कंडीशन ये थी कि 50% ऑफ द वर्कर्स इन बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री केम फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रत्नागिरी, ठीक है, आसपास के लोग ही थे जो वर्क करने के लिए आते थे। कानपुर मिल्स में नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से लोग आए, तो नंबर ऑफ जॉब सीकर्स बहुत ज्यादा थे और जॉब्स अवेलेबल कम थी। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो यूजुअली क्या करते थे, एक जॉबर को हायर करते थे जो कि नए रिक्रूट्स को अपॉइंट करने का काम करता था। अगर कोई जॉबर है, मेरे को अगर जॉबर की जॉब मिली हुई है कहीं पर किसी इंडस्ट्री में, तो मेरे पास अगर कोई आएगा तो मेरा सबसे पहला ये होगा कि आप कहाँ से हो, ठीक है, आप क्या मेरे कोई रिलेटिव हो, मेरे कोई किन रिलेशन में लगते हो। तो ऐसा होता है कि हम मोस्टली प्रेफरेंस जब देते हैं तो प्रेफरेंस हम अपने ब्लड रिलेशन वालों को देंगे, किसी रिलेटिव को देंगे, फ्रेंड्स को देंगे, या फिर द पीपल हु बिलोंग टू आवर सेम विलेज। अब इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो पिक्यूलैरिटीज थी वो क्या थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो यूरोपियन एजेंसीज ने टी और कॉफी के प्लांटेशंस को सेटअप कर लिया था और माइनिंग में इन्वेस्ट किया था। इंडियन बिजनेसमैन जो थे वो कंपटीशन हर कॉस्ट पर अवॉइड करना चाहते थे मैनचेस्टर गुड्स के साथ। तो जो अर्ली कॉटन मिल्स थी इंडिया में, उन्होंने कोर्स कॉटन यार्न को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया रादर देन फैब्रिक। बाद में क्या होता है, कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 1900 एंड 1912 क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड पर था, ठीक है, इंडिया का नेशनल फ्रीडम, इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल वो भी राइज पर था। तो उस राइज पर होने की वजह से क्या था, हम बॉयकॉट कर रहे थे बाहर की चीजों को, इसीलिए वो चीज डबल अप हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई तो उसने एक नई सिचुएशन को राइज किया। मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया इट डिक्लाइंड। जो इंडियन फैक्ट्रीज थी उनको बोला गया कि आप रॉ मटेरियल अब हमें सप्लाई करना शुरू कर दो क्योंकि आप इस चेन में हो।
द फर्स्ट ऑफिस मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर सेटअप किया गया था। उन्होंने अलग अलग बिजनेस रिलेटेड जो लॉज थे वो बनाने शुरू करे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर्कड इन द स्मॉल स्केल वर्कशॉप, स्मॉल वर्कशॉप्स में वर्क करते थे, हाउस होल्ड यूनिट्स में काम करते थे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और जो भी स्मॉल इनोवेशंस थे, उन्होंने हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है। एक हमारे पास यहाँ पर एक डिजाइन का वो है कि एक हैंड वोवन क्लॉथ कैसा दिखता था। ठीक है, 20th सेंचुरी में हैंडलूम जो क्लॉथ प्रोडक्शन था वो एक्सपैंड हुआ धीरे धीरे, पार्टली बिकॉज ऑफ द चेंजेस। सेकेंड डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी हम क्या देखते हैं कि वीवर्स जो थे वो लूम्स को यूज कर रहे थे एक फ्लाई शटल के साथ, तो प्रोडक्टिविटी पर वर्कर इंक्रीज होती गई, स्पीड अप होती गई प्रोडक्शन, और लेबर की डिमांड जो थी वो कम हो गई, डिपेंडेंसी कम हो गई। 1941 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 35% ऑफ हैंडलूम्स इन इंडिया वर फिटेड विद फ्लाइंग शटल्स। ठीक है, और रीजन्स जो थे जैसे ट्रेवनकोर वगैरह, ये जो रीजन्स थे, इन रीजन्स में प्रॉस्पेरिटी जो थी वो ज्यादा आ रही थी। फ्लाई शटल क्या होती है? एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो कि वीविंग के लिए यूज में ली जाती है, और इसको रोप्स और पुलिस की हेल्प से मूव किया जाता है। हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स को, हमारे पास यहाँ पर इमेज है, ये इमेज हमें बताती है कि हाउ डज इट वर्क। ठीक है, आप लोकेशन देख सकते हो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की। इंडिया में जो सर्कल्स बने हुए हैं, ये सर्कल्स वो एरियाज हैं जहां पर ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लोकेटेड थी। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट फॉर गुड्स। एडवर्टीजमेंट्स का उस जमाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। मेक द प्रोडक्ट्स अपीयर। एडवर्टीजमेंट क्या करता है? एडवर्टीजमेंट आपको बहुत कम समय में कन्विंस कर देता है कि वाई शुड यू परचेज दिस प्रोडक्ट। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट को ऐसा एडवर्टाइज किया दैट इट इज वेरी डिजायरेबल एंड नेसेसरी, ताकि लोगों का जो दिमाग है वो शेप किया जा सके। ठीक है, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी थिंकिंग को यूज किया जा सकता है। और उस समय पे लोग जो थे वो रिलीजन के थ्रू बहुत बाइंड थे, तो उन्होंने रिलीजन को एज अ मीन्स यूज किया अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए, कि हम जैसे यहाँ पर ग्राइप वाटर होता है जो बच्चों को दिया जाता है, छोटे बच्चों को दिया जाता है, कीप्स द बेबी वेल, ये इसका नाम था, वुडवर्ड्स का आता था ये इसमें हम क्या देखते हैं, लॉर्ड कृष्णा की इमेज है। लॉर्ड कृष्णा की इमेज क्यों है? इट वॉज पॉपुलराइज्ड फॉर बेबी प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उनका चाइल्डहुड वाला वो है फॉर्म। ठीक, इसके अलावा लेबल्स जो थे उनका भी यूज किया गया, टू मेक needed to make the name and place of manufacturer and company familiar to the buyer। तो मैनचेस्टर लेबल्स जो थे वो अर्लियर 20th सेंचुरी में ऐसे दिखते थे, जिसमें न्यूमरस इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस, कार्तिक, कृष्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, इनका यूज किया जाता था। महाराजा रंजीत सिंह ऑन अ मैनचेस्टर लेबर। हिस्टोरिक फिगर्स का भी यूज किया जाता था ताकि प्रोडक्ट के लिए जो रिस्पेक्ट है वो जनरेट होना शुरू हो जाए। इमेजेस ऑफ नवाब्स को भी यूज किया गया है। नवाब, इंडियन इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस मेक द प्रोडक्ट फेमिलियर टू द मासेस। प्रिंटिंग कैलेंडर, कैलेंडर को प्रिंट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि कैलेंडर क्या होता है, डेट के साथ साथ एडवर्टीजमेंट भी देता है। तो जो एडवर्टीजमेंट है वो एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे सनलाइट सोप कैलेंडर ऑफ 1934, यहाँ पर गॉड विष्णु इज शोन ब्रिंगिंग सनलाइट फ्रॉम अक्रॉस द स्काईज। इसी तरीके से जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने एडवर्टीजमेंट शुरू किया तो उनका मैसेज क्लियर था, उन्होंने नेशनलिस्ट मैसेज भेजा। उस समय पर फ्रीडम स्ट्रगल बिल्कुल स्प्री पर था कि अगर आप अपने नेशन की केयर करते हो देन बाय दिस प्रोडक्ट जो इंडियन प्रोड्यूस है, इंडियन प्रोडक्ट है। एडवर्टीजमेंट्स बिकेम अ व्हीकल ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। एक मिल्क क्लॉथ का हमारे पास यहाँ पर लेबल दिया हुआ है जिसमें ये मैसेजेस जो थे ये पोर्ट्रे करे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। आई होप you have understood this chapter. We will start with we'll start with the next chapter in the next video. Thank you so much, students.